Hello everyone. In this session, we are going to study chapter number 7 of SP, that is share capital and types of shares. First of all, before starting the chapter, let me make you clear with the meaning and definition of share. Now, share, that is a part. जनरल मीनिंग में अगर शेयर का मीनिंग अगर हम देखें तो उसका मतलब है पार्ट, बट शेयर हियर इट मीन्स अ पार्ट ऑफ कैपिटल ऑफ कंपनी. कंपनी का जो कैपिटल होता है उसका एक पार्ट होता है शेयर. हम प्रॉपर उसकी डेफिनेशन एंड मीनिंग देखते हैं. इन जनरल टर्म्स, proportion of owner capital is large, which is divided into smaller parts. This smaller part is known as share. तो यहाँ पे बहुत इजी डेफिनेशन दी है कि जो ऑनर का कैपिटल होता है वो बहुत लार्ज होता है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स एंड दोज स्मॉलर पार्ट्स आर नोन एज शेयर. And that it means implacable interest in monetary terms or responsibilities. Now ये इंटरेस्ट कैसा है? इम्प्लेसेबल. अगर हम मॉनेटरी व्यू पॉइंट से देखें तो उसका इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है कंपनी के लिए. The company offers proposal to public to collect capital by publishing prospectus as per the provisions of Companies Act. The person who holds share is known as shareholder of a company. So here the company proposes to the people, general public, to apply for the share capital, and the one who is holding the shares of a company are known as shareholders. अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं. शेयर मीन्स वन पार्ट ऑफ कैपिटल विच ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक. कंपनी डिवाइड्स इट्स कैपिटल इन स्मॉलर पार्ट्स एंड दैट पार्ट इज नोन एज शेयर. ये डेफिनेशन लेटेस्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. According to the Companies Act 2013, share means it is a one part of capital, जिसमें स्टॉक भी इंक्लूड हो सकता है. And company has divided that stock or that whole capital into smaller parts, और वो जो smaller parts को हम बोलते हैं share. So that was the general definition of share. Now we'll see the characteristics of share. That what are its characteristics? The first is part of a share capital. Obviously हमने definition में देखा that share is a part of share capital of a company which is divided into smaller parts. Second is interest in company. Now what share, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? दैट शेयर होल्डर्स आर हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी. कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वो शेयर मतलब कि जो शेयर होल्डर्स है दे आर हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी. Third, movable assets. Now share is called a movable asset. Why? Because it can be sold, it can be purchased from anywhere. वो कहीं से भी सोल्ड सेल हो सकता है, वो परचेज कहीं से कर सकते हैं हम एज अ गिफ्ट और एज अ डोनेशन हम कहीं पे दे भी सकते हैं. सो शेयर इज़ अ मूवेबल असेट. नेक्स्ट इज फ्री ट्रांसफ़र. अब वो कहीं पे इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है किसी के नाम पर. इफ द शेयर्स इन द नेम ऑफ अ फादर देन इट कैन बी ट्रांसफर्ड इजीली इन द नेम ऑफ grandfather, in the name of son, or in the name of any family members. Next, right and responsibility. Now equity shareholders जो होते हैं, we know there are two types of shares, equity shares and preference shares. Equity shareholders have the right and responsibility in the company. They have to attend the meeting, they are having voting rights. वो preference shareholders को नहीं होते हैं. And even they have to pay the face value of the shares. So right and responsibility lies for the equity shareholders. The next topic is types of share capital. Now share capital के कौन से types है? तो first we will see that there are 5 types of share capital. अलग अलग share types के share capitals होते हैं. First is authorized share capital, issued share capital, subscribed share capital, called up share capital and paid up share capital. We'll move on to all the 5 types in detail. First, authorized share capital. Now authorized, that is the total amount of registered capital. जितना भी capital company registered करवाया है memorandum of association में उसको बोलते हैं हम authorized share capital. A company cannot issue more than the authorized share capital. For example, if the authorized share capital is 10 lakh rupees, then a company can only issue share up till 10 lakh rupees, not more than that. 10 लाख से ज़्यादा वो शेयर इश्यू नहीं कर सकते हैं.
सो द टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज नोन एज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। उसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल। अब ऑथोराइज कैपिटल में से जितना वो शेयर्स इश्यू कर रहे हैं शेयर कैपिटल को इकट्ठा करने के लिए, उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। जैसे मैंने बोला ऑथोराइज शेयर कैपिटल इज 10 लाख, उसमें से कंपनी 8 लाख के शेयर्स ही इश्यू कर रहे हैं मार्केट में, सो दैट 8 लाख इज कॉल्ड द इश्यूड शेयर कैपिटल। नेक्स्ट इज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। नो सब्सक्रिप्शन जितने अमाउंट का मिला है उसको बोलते हैं सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल कंपनीज ऑथोराइज कैपिटल इज 10 लाख रुपीज। इश्यूड शेयर कैपिटल द नंबर ऑफ शेयर्स इश्यूड इज अप टिल 8 लाख रुपीज। नाउ 8 लाख इश्यू को तो कर दिया है, बट सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिला है सिर्फ 6 लाख रुपीज का, सो 6 लाख रुपीज इज द सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। Next is called up share capital. Now here the term installment is used. We know that a company directly do not tell the shareholders to pay the whole amount of share. वो क्या करेंगे, कंपनी क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी अमाउंट मंगवाएंगे। फॉर एग्जांपल 6 लाख का सब्सक्राइब कैपिटल है, उसमें से कॉल अप करेंगे, इंस्टॉलमेंट में अमाउंट मंगवाएंगे कि फर्स्ट 2 मंथ्स में आपको 2 लाख रुपीज़ पे करना है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में और 2 लाख मतलब 4 लाख हो गया, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में 2 लाख मतलब ऐसे करके 2 लाख की 3 इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट कॉल अप करेंगे। तो उसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। जितना अमाउंट अभी इंस्टॉलमेंट में मिला है एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड जितना कॉल अप हुआ है उसको बोलेंगे कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। मानो कि 6 लाख में से अभी 3 लाख रुपीज़ ही मिले हैं, तो 3 लाख कॉल्ड अप अमाउंट किया है, तो दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल। उसके बाद है पेड अप कैपिटल। तो कॉल तो 3 लाख रुपीज़ का किया है, लेकिन पेड उसमें से कितना हुआ है, ओनली 1 लाख रुपीज़। द कंपनी हैज़ कॉल्ड 3 लाख रुपीज़ फ्रॉम द पब्लिक, फ्रॉम द शेयर होल्डर्स, बट उसमें से सिर्फ 1 लाख का ही पेमेंट मिला है, 2 लाख का पेमेंट नहीं मिला है, सो 1 lakh amount is called the paid up share capital. I'm again explaining all these 6 types. First is authorized share capital, total share capital of the company. If it is 10 lakh, तो 10 lakh से ज़्यादा कंपनी शेयर मंगवा नहीं सकता है, इशू नहीं कर सकता है। उसके बाद है इश्यूड शेयर कैपिटल। जितना मैक्सिमम अमाउंट रजिस्टर किया है उसमें से कितना इश्यू हुआ है, जब 8 लाख इश्यू हुआ है तो उसको बोलते हैं इश्यूड शेयर कैपिटल। फिर सब्सक्रिप्शन कंपनी को मिला है पब्लिक के पास से, मानो कि 8 लाख में से 6 लाख का सब्सक्रिप्शन मिला है, इट इज़ नोन एज सब्सक्राइब शेयर कैपिटल। उसके बाद कॉल अप हुई अमाउंट, कंपनी इज कॉलिंग फॉर द अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। 6 लाख में से कंपनी ने 3 लाख रुपीज़ का कॉल किया है, तो 3 लाख इज कॉल्ड अप अमाउंट एंड कॉल 3 लाख किए हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स ने सिर्फ 1 लाख रुपीज़ ही पे किया है, तो 1 लाख इज कॉल्ड द पेड अप शेयर कैपिटल। सो दैट्स हाउ शेयर कैपिटल्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। अभी हमने देखा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? सो टाइप्स ऑफ शेयर्स में होते हैं इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। Now equity shares, okay, that is ordinary equity share, other equity share and sweat equity share. Preference share में है redeemed before 20 years, redeemed after 20 years. We'll study in detail. First of all, ordinary equity share. Ordinary equity share it means, पहले तो equity share का meaning समझ लो। Equity share that is the shareholder has the right to get dividend. डिविडेंड को उनका राइट मिलता है। प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को ज़्यादा मिलता है डिविडेंड का। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ कंपनी इज़ इन लॉस, स्टिल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विल गेट द राइट टू आस्क फॉर द डिविडेंड, और जितना भी बचा है बाद में तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा उसका प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 20 लाख रुपीज़, preference shareholders are getting fixed dividend 10%, 15%, 20% जो भी डिसाइड किया है उनको फिक्स मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 20 लाख का 10% तो 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ दे विल गेट द फिक्स्ड डिविडेंड। नाउ देन आफ्टर गेट्स इक्विटी शेयर होल्डर। अब इक्विटी शेयर होल्डर को क्या होता है कि उनको डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट रहा आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, देन एंड देन ओनली दे विल गेट द प्रॉफिट। इक्विटी शेयर होल्डर्स को तो ही प्रॉफिट मिलेगा, उनके राइट्स भी ज़्यादा होता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा होता है, उनके प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है और लॉस भी ज़्यादा होता है। पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब कुछ फिक्स होता है।
सो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स जो है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी, दे आर हैविंग वोटिंग राइट्स. Why they are called true owners? Because they bear more risk. Equity shareholders bear the more risk compared to the preferential holders. So they are called the true owners of the company. उनको वोटिंग राइट्स भी ज़्यादा मिलेंगे, डिविडेंड भी उनको ज़्यादा मिलेगा, बट हाँ वो थोड़ा अनसर्टेन होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है. दे आर हैविंग लिंक विथ प्रॉफिट, उनको डायरेक्टली प्रॉफिट के साथ लिंक होता है. दे आर गेटिंग इनफ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. इन जनरल मीटिंग दे हैव टू रिमेन प्रेजेंट. प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को बुलाया नहीं जाता है, बट इक्विटी शेयरहोल्डर्स आर कॉल्ड फॉर द जनरल मीटिंग बिकॉज दे आर कॉल्ड द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी. रिफंड ऑफ कैपिटल. नाउ इक्विटी शेयरहोल्डर्स जितना भी अमाउंट ये इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में, दे आर इट इज़ अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट अंटिल द कंपनी एग्जिस्ट. जब तक कंपनी मार्केट में एग्जिट हो रही है तब तक उनका कैपिटल कंपनी में ही इन्वेस्ट रहेगा. देयर अमाउंट इज नॉन रिफंडेबल. नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन. नाउ एज एंड व्हेन द कंपनी इज डिसोल्यूटेड, मतलब कंपनी जब बंद हो जाएगी उसके बाद ही उनको अमाउंट मिलेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेफरेंशियल होल्डर्स विल गेट द अमाउंट, उसके बाद ही इक्विटी होल्डर्स को अमाउंट मिलेगा. नेक्स्ट बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स, वो बहुत ज़्यादा होता है. दो इट इज़ अनसर्टेन, बट राइट शेयर्स, बोनस शेयर्स जो भी उनको मिलता है अकॉर्डिंग टू द राइज इन द प्राइस ऑफ द मार्केट, मार्केट में जो भी प्राइस राइज होती है उसके हिसाब से उनको बेनिफिट्स एंड रिटर्न्स मिलेंगे जो प्रेफरेंशियल होल्डर्स को नहीं मिलेंगे. नेक्स्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ शेयर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर परचेजिंग इक्विटी शेयर इट हैज़ टू बी रजिस्टर्ड इन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज. रजिस्टर करने के बाद ही वो शेयर्स परचेज एंड सेल कर सकते हैं. दैट इज़ ऑल अबाउट ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर. उसके बाद हम करेंगे दूसरा टाइप, दैट इज अदर इक्विटी शेयर्स. दैट इज हैविंग वोटिंग राइट्स, जिसमें वोटिंग राइट्स ज़्यादा मिलते हैं. एंड इक्विटी शेयर विथ डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड एंड वोटिंग, कि यहाँ पे जो फर्स्ट टाइप है अदर इक्विटी शेयर में उसमें वोटिंग राइट ज़्यादा मिलता है, दूसरे में वोटिंग एंड डिविडेंड दोनों का राइट ज़्यादा मिलता है, उसके लिए इन्वेस्ट भी ज़्यादा करना पड़ता है. एंड द लास्ट वन इज स्वेट इक्विटी शेयर्स. Now sweat equity shares, those who are directors and professionals of the company, जो higher authorities में है, directors, professional experts, employees को discount में मिलता है shares in cash, तो उसको बोलते हैं sweat equity shares. And these shares are offered at a lower price compared to the market price. For example, market price is 10 rupees per share. तो ये employees को, professional experts या directors है, उनके पास से कम रेट में लिया जाएगा, 7 rupees or 8 rupees or like that. So that these people will be getting motivated to purchase more shares. So that is how the types are there for the equity shares. अब हम करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें दो टाइप्स है, रिडीम्ड बिफोर 20 ईयर्स एंड रिडीम्ड आफ्टर 20 ईयर्स. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. नाउ इफ द शेयर्स आर रिडीम्ड बिफोर 20 ईयर्स, इट मीन्स कि फॉर एग्जाम्पल अ शेयर हैज बीन परचेज्ड इन 2000, देन 20 years तक, मतलब up till 2020 the shareholder has to sell the shares. Before 20 years मतलब कि 2020 तक वो shares sell कर देने हैं. It cannot be redeemed after 20 years. 20 साल के बाद वो sell नहीं हो पाएगा, वो redeem नहीं होगा. दूसरा है आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब कि शेयर्स है वो 20 ईयर्स तक कंपनी में उसका अमाउंट इन्वेस्ट रहेगा. 20 ईयर्स के बाद ही वो अमाउंट रिडीम हो सकता है. फॉर एग्जांपल 2000 में शेयर लिए थे तो 20 साल तक उसका अमाउंट, फॉर एग्जांपल अगर वो अमाउंट 5 लाख रुपीज़ है तो इन 2020 अ शेयर होल्डर हैज़ परचेज द शेयर ऑफ रुपीज़ 5 लाख. अप टिल 2020 that 5 lakh rupees will be invested in the company. 2020 के बाद ही वो 5 लाख रुपए का शेयर रिडीम हो सकता है. That's about the types of preference shares. Now हम इसका डिफरेंस देखेंगे कि इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या है. माइंडेड स्टूडेंट्स, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इट डेफिनेटली इट विल बी आस्क्ड फॉर 3 मार्क्स और 4 मार्क्स या 5 मार्क्स का भी ये क्वेश्चन आ सकता है. सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक.
देयर आर 7 डिफरेंस गिवन हियर। विल सी द फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इक्विटी शेयर क्यों ज़रूरी है कंपनी के लिए? दैट इज़ टू इशू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल की वैल्यू रेज करनी है, उसके लिए इक्विटी शेयर ज़रूरी है। बट प्रेफरेंस शेयर में वो ज़रूरत नहीं है, रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो शेयर कैपिटल इशू रेज करे। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिविडेंड। इक्विटी शेयर के लिए कुछ भी फिक्स नहीं है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो इक्विटी शेयर को डिविडेंड मिलेगा, अगर प्रॉफिट कम है तो डिविडेंड कम मिलेगा, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो इनको डिविडेंड नहीं मिलेगा। बट प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो फिक्स ही होता है। Rights. Now equity shares are called the true owners of the company. So they are having every voting rights, the right to attend meeting, the right to select the directors of the company. सभी rights मिलते हैं। But preference shareholders को इसमें से कुछ भी rights नहीं मिलता है। Only matters relating to the shares से related कुछ भी matters है तो ही उनको rights मिलेंगे। Risk. ना ये रिस्की है बिकॉज ये कंपनी में लास्ट तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा और कभी डिविडेंड नहीं भी मिल सकते, तो इट इज़ रिस्की। बट प्रेफरेंस शेयर दैट आर कॉल्ड लेस रिस्की। नाउ इन्वेस्टर्स, नाउ दोज इन्वेस्टर्स हु आर रेडी टू इन्वेस्ट टू गेट रिस्क एंड they are ready to gain, they are wanted to gain maximum return at the end of the company resolution, they only have to invest here। वही लोग सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यार जो उनको स्टेबल इनकम चाहिए, सेफ्टी चाहिए कैपिटल की, उनके शेयर्स अमाउंट की एंड रेगुलर इनकम चाहिए, दे इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स। नाउ मार्केट प्राइस। अब यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है इसलिए मार्केट प्राइस चेंज होती जाएगी, बट प्रेफरेंस शेयर में मार्केट प्राइस फिक्स ही रहेगी। यार इन इक्विटी शेयर दैट कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज इन कैपिटल। हो सकता है कैपिटल में इंक्रीज हो सकता है, बट यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल इंक्रीज नहीं हो सकता। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन।